गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को जय मसीह और हार्दिक स्वागत है। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी हर रविवार की तरह आज भी बहुत ही उत्साहित हैं हमारे साथ आराधना करने के लिए। मैं आप सभी को एक सूचना दे दूं, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक में हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। हमारा पेज का नाम है विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया सिलीगुड़ी। और इफ़ आप सभी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। तो आइए हम आज की आराधना में जाने से आगे हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। जैसे कि प्रभु हम वर्चुअली इकट्ठा हुए हैं आपकी आराधना करने के लिए, और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आप हम सभी को प्रभु आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। फिल अस विथ योर माइटी प्रेजेंस ओ लॉर्ड जीसस। और प्रभु होने दीजिए हम आपकी आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई से हम कर सके, पूरी स्वतंत्रता के साथ में हम जहाँ पर भी है आपकी आराधना हम कर सके। और प्रभु हमें आपके वचन को सुनने में प्रभु आप हमें सहायता करें, ताकि कोई भी वचन मिस होने ना पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपका वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। और प्रभु हमें सहायता करे ताकि हम आपके वचन को सुन सके और उसके आशीष को हम प्राप्त कर सके। प्रभु होने दीजिए आज के सेवकाई के द्वारा हम हर एक आशीषित होने पाए और हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को आने पाए। परमेश्वर धन्यवाद आज की संपूर्ण सेवकाई को और हर एक व्यक्ति को जो कोई हमें देख रहे इस दौरान। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु आप आशीष करें। धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Morning church, it's a good day to praise and worship our Lord's name. Let's claim a word for our lives and our family, that He'll turn our mornings into dancing this morning. Let's claim it and let's believe in His word. Your light broke through my life, bestowed exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. Come on, church, sing with us. Your light broke through my life, bestowed exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hand lifted me up, I stand on higher grounds. And your praise rose in my heart and made this valley sing. Your hands lifted me up. Your hand lifted me up, I stand on higher ground. And your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Church, this morning is the day to overcome
all our sicknesses, all our weaknesses, all the mornings, all the things we are going through. No matter what, God stands for us and He fights for us. Come on, church, sing with us. This is how we overcome. This is how we overcome. Yeah. With our hands lifted high. This is how we overcome. Yeah. With our feet moving up and down. This is how we overcome. Yeah. Claim this word for your life. This is how we overcome. Yeah. Come on, church. This is how we overcome. 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 Oh, this is how we overcome. All our sicknesses and weaknesses, yeah. All our mornings will be turned into dancings in Jesus' name. Oh, yeah. This is how we overcome. This is how we overcome. This is how we over. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Yeah. Praise your name, Lord. Turn my morning into dancing, yeah. Jesus, we lift your name up high. Turn this morning into dancing, yeah. परमेश्वर की आराधना करें। आज के सुबह आइए हम सब मिलकर हमारे यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। यीशु, जीसस। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में
बीमारियों में यहोवा राफा यीशु बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी बीमारियों में आइए कलीसिया अगर आप में से कोई आज के सुबह बीमार है आइए हम घोषणा करें कि यहोवा राफा मेरा शिफा है तू ही मेरी शिफा गल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान उठते हुए तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान कलीसिया में उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान बीमारी पे तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में
आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर, आप सदा सर्वदा हमारे साथ में खड़े हैं। कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी बड़ी लहरें हमें आपके करीब होने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि परमेश्वर आप हमारा बल है, आप हमारा बल है। उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमिया, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमिया, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि आपकी नाव डूबने वाली है, पर मैं आज आपसे
कहना चाहती हूँ कि आपकी नाव नहीं डूबेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके नाव में आपके साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके नाव में आपके साथ है। आपकी नाव नहीं डूबेगी। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। कलीसिया मिलकर, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। आइए कलीसिया घोषणा करें, तू मेरा बल है प्रभु यीशु, तू मेरा बल है प्रभु यीशु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। Yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Jesus. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें ये विश्राम दिन दिया। सो आइए हम अपने घरों में रह करके हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए आशीष की प्रार्थना करेंगे जिनका बर्थडे और शादी की सालगिरह इस सप्ताह पड़ता है। We are so excited to celebrate your special day. We wish you a very happy birthday and a very happy wedding anniversary. May the loving and good God bless you richly on your birthday and anniversary. We pray for you according to Isaiah chapter 46 verse 4. Even to your old age I am He, and even to grey hairs I carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. We wish you a very happy birthday and a very happy wedding anniversary. हम सब आपके विशेष दिन और अवसर को मनाने में बहुत ही उत्साहित हैं। जन्मदिन और शादी के सालगिरह के अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई देते हैं। भला और प्रेमी परमेश्वर आपके जन्मदिन और शादी के सालगिरह के अवसर पर आपको ढेर सारी आशीष दे। आपके लिए हमारी प्रार्थना है। यशायाह 46:4 तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाया रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। हमारी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए प्रभु।
परमेश्वर पिता, हम यशायाह 46 का 4 के अनुसार प्रभु हमारे प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के मुताबिक प्रभु, जहाँ पर आपने कहा कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें संभाले रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु। परमेश्वर, जैसा इस वचन में आपने प्रतिज्ञा की है प्रभु, होने दीजिए प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह आपके बच्चों के जीवन भर बना रहे प्रभु। परमेश्वर पिता, उनके बुढ़ापे तक प्रभु आपकी उपस्थिति उनको घेरे रह सके परमेश्वर पिता। और साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु हम मनुष्य जाति की सृष्टि की प्रभु, इस वचन में कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। परमेश्वर पिता, इस वचन के मुताबिक होने दीजिए प्रभु, आपके लोगों के जीवन के अगुवाई प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु। हमेशा प्रभु आप उन्हें संभाले रहे प्रभु, और हमेशा परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति उनको चारों ओर से घेरे रहे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आपकी जो योजना उनके लिए है प्रभु, वो उनके जीवन में, उनके बुढ़ापे तक, उनके जीवन भर प्रभु आपकी योजना उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु, इस तरह से हम प्रभु पूरी कलीसिया मिलकर के प्रभु उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना कर पाए प्रभु। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पास्टर, पूरी विक्ट्री फैमिली की ओर से आप सबको आपके बर्थडे एनिवर्सरी का बधाई। प्रभु आपको आशीष दे और हमेशा प्रभु की उपस्थिति आपको घेरे रखे। आइए हम उत्साह के वचन में जाएंगे। सो मैं आपके आगे एक वचन पढ़ना चाहूँगी, नीति वचन 16 का 3 में इस तरह से कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। यहाँ कहता है लेखक कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे हमारी कल्पनाएं सफल होगी। सो यहाँ मैं इसे एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ना चाहूँगी। यहाँ और भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यहाँ कहता है रोल योर वर्क्स अपॉन द लॉर्ड, कहता है अपने कार्यों को प्रभु पर देना है। ब्रैकेट में कहता है कमिट एंड ट्रस्ट देम होली टू हिम, हमें उन पर भरोसा रख करके संपूर्ण तौर से उन कार्यों को परमेश्वर को सौंपना है। He will cause your thoughts to become agreeable to His will, and so shall your plans be established and succeed। कहता है वो आपके विचारों को उनके इच्छा के अनुसार एग्री करने में वो सहायता करेगा, अर्थात हमारे विचारों को वो अपनी इच्छा की ओर मुड़ेगा। और इस तरह से कहता है कि हमारा जो योजनाएं हैं, हमारी जो योजनाएं हैं वो स्थापित होगी और हम सफलता पाएंगे। मेरे प्रिय, इस वचन के मुताबिक मैं आपसे आज की सुबह उत्साह के रूप में इतना कहना चाहती हूँ कि हम जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी योजनाएं हम बनाते हैं, जो भी निर्णय हम लेना चाहते हैं, मेरे प्रिय ये बहुत ज़रूरी है कि वो योजनाएं, वो निर्णय परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हो। यहाँ कहता है कि जब हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने देते हैं, प्रभु को देते हैं, तो कहता है कि वो हमारे विचारों को उनकी इच्छा के अनुसार वो ढाल देंगे। मेरे प्रिय, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी करेंगे अपने जीवन के लिए, हमें उनकी इच्छा के अनुसार करना है। मैं बताना चाहती हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी के बगीचे में वो प्रार्थना कर रहे थे, उनकी इच्छा थी कि वो उस कटोरे को न पिए, लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर पिता, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे हरेक जीवन के हरेक क्षण हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और जब आप और हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 2:16 में, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है।
हालेलुया। जैसा मैंने एम्प्लीफाइड में पढ़ा कि परमेश्वर हमारे विचारों को उनकी इच्छा की ओर मोड़ देगा, उसी तरह से जब आप और हम अपनी योजनाओं को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहती हूँ, तो मेरे प्रिय हो परमेश्वर हमारे विचार को उनके इच्छा के अनुसार वो मोड़ देगा और आपका और मेरा मन परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। जब आप और हम पढ़ते हैं एक्सोडस में, निर्गमन में जब आप और हम पढ़ते हैं निर्गमन 33 का 14 और 15, एक्सोडस 33 वर्स 14 एंड 15, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये उस समय की घटना है जब मूसा लोगों की अगुवाई कर रहा था और यहाँ पर यहोवा मूसा से कहता है कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तब मूसा कहता है कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ हमारे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो। जब आप और हम अपने जीवन के लिए किसी भी चीज़ के लिए हम योजना बनाते हैं, हम निर्णय लेना चाहते हैं मेरे प्रिय हो, इससे पहले कि हम किसी काम को करें, ये बहुत ज़रूरी है कि उन कार्यों को, उन योजनाओं को, उन निर्णयों को हम प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रार्थना करें, प्रभु से कहे कि प्रभु इस योजना में आपकी क्या योजना है, आपकी इच्छा क्या है, मेरी जो योजना उसमें आपकी इच्छा क्या है, मैं जो निर्णय लेना चाहती हूँ इसमें आपकी इच्छा क्या है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो कि हमें हमारे जीवन के हर एक निर्णय में, हर एक योजनाओं में हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार योजनाओं को बनाएंगे, निर्णय लेंगे, तो वचन कहता है कि वो हमारे योजनाओं को स्थापित करेगा और वो हमें सफलता देगा। मेरे प्रिय हो, आपकी मेरी योजना को स्थापित होने के लिए, आपको और मुझको सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चले। क्योंकि वचन कहता है, जब आप और हम नीति वचन में ही पढ़ते जाएंगे तो वहाँ कहता है कि अपने बुद्धि का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर बार बार हमें हमारे जीवन की अगुवाई वो करना चाहते हैं। इसीलिए जब मैं ये पढ़ रही थी, मैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए मैंने इस वचन को लिया। मैंने कहा प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हम आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा मूसा ने कहा, परमेश्वर यहोवा अगर तू हमारे साथ न हो तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्रिय हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित होंगे, हमारी अगुवाई करेंगे मेरे प्रिय हो, तो आप और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर अपनी योजना जो हमें वो देंगे, उस योजना को स्थापित करेंगे और हमें सफलता देंगे। प्रभु को धन्यवाद हो ये समय के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते ये सुंदर दिन के लिए। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बीते सप्ताह अपने अनुग्रह में हमें रखा, हर प्रकार की मुसीबत से आपने बचाया प्रभु, और हमें ये सुंदर दिन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते इस वचन के अनुसार प्रभु। परमेश्वर पिता, आप हम हर एक को सहायता करें प्रभु कि पिता हम अपनी योजनाओं को, अपने निर्णय को, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं प्रभु, जिस ओर हम अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु कि हम अपने कदम को बढ़ाने से पहले, अपनी योजनाओं को प्रभु, योजनाओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेने से पहले प्रभु, हम उन तमाम योजनाओं को प्रभु हम आपके चरण में समर्पित कर सके और हम ये जान सके प्रभु कि हमारी इस योजना में, हमारे इस निर्णय में आपकी क्या इच्छा है प्रभु। हम हर एक को आप सहायता करें प्रभु कि हम अपने जीवन को आपके इच्छा के अनुसार हम चला
सके प्रभु, हम अपने जीवन में आपकी इच्छा को हम पूरा कर सके प्रभु। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु। और साथ ही मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हमारे दशवांशों के लिए, भेंटों के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह जो आपने हमें दी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप प्रभु मनुष्य को बुद्धि और सामर्थ्य देते हैं कमाने के लिए प्रभु, और वही बुद्धि और वही सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जो कुछ भी हमें मिला है प्रभु इनकम के रूप में प्रभु, उसमें से हम प्रभु आपका जो 10वां अंश आपका हिस्सा है प्रभु, उसे हम आपके भवन में लाते हैं। उठाने की भेंटों को, स्वेच्छा भेंटों को प्रभु हम आपके भवन में लाते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन भेंटों के द्वारा, इन 10वां अंशों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी ओर से प्रभु हम हर एक के जीवन में प्रभु बहुतायत की आशीष आने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता, इस तरह से प्रभु होने दीजिए प्रभु, हम अपने धन संपत्ति के द्वारा प्रभु हम आपकी आराधना कर सके प्रभु, हम आपको आदर दे सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, इस तरह से आपने हमें ये सुंदर दिन दिया। यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए चर्च, ये समय है वचन का, हम परमेश्वर का जीवित वचन को सुनेंगे। तो आइए हम हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड डैनियल लेप्चा को हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. How are you doing? आप कैसे हैं आज? I am so happy to see you again. और मैं आपको देखकर बहुत ही खुश हूँ आज। And today the Lord has special message for you and me. और आज प्रभु के पास आपके और मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल संदेश है। We are going to understand something from the Word of God. और हम परमेश्वर के वचन से कुछ समझने वाले हैं। As Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, when you know the truth, truth shall set you free. जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Every time the Lord wants us to understand the truth of His Word. और हर बार जब यीशु चाहता है कि हम उसके वचन से सच्चाई को जाने, समझे। So I am praying that you would really be attentive to hear the message this morning. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप आज के सुबह पूरे ध्यान से आज के संदेश को सुने। Let's honor the presence of God right now. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें अभी। Jesus said, यीशु ने कहा, wherever 2 or 3 gather together in my name, I am there in your midst. और जब भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे तो मैं वहाँ पे उपस्थित होऊंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So you know what you can do? आपको पता है आप क्या कर सकते हैं? Just sit down. आप वहाँ पे बैठे, Don't move around. आप इधर उधर ना चले Listen to the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुने। Amen. आमीन। Let's have a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Dear Lord Jesus, प्रिय प्रभु यीशु, bless us today. हमें आज आशीष दे। Even as we are here at your feet, और जैसे आज हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं, we want to sit at your feet like Mary, और हम मरियम की तरह आपके चरणों में बैठना चाहते हैं, quietly. शांत पूर्वक। Yes, sometimes it's very hard for us to quieten ourselves. हाँ, कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने आप को शांत करें। But dear Lord Jesus, पर प्रभु यीशु, as David says, जैसा दाऊद कहता है, I am like a wind child. और मैं तो वो दूध छुड़ाया हुआ बच्चे जैसा हूँ। Yes, Lord, even right now, और हाँ प्रभु, अभी भी help us to sit quietly at your feet and listen to your gentle, small voice. हमें सहायता करे कि हम शांत होकर आपके चरणों में बैठकर आपके वो जेंटल आपकी आवाज को हम सुन सके। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। Thank you for the wonderful time of worship. धन्यवाद बहुत ही सुंदर आराधना का समय के लिए। Thank you, Lord, for the anointing on our team. धन्यवाद आपका अभिषेक के लिए जो हमारे टीम के ऊपर था। And thank you for the word of exhortation. और धन्यवाद उत्साह के वचन के लिए। We have been blessed. और हमने आशीष को पाया है। And we have been able to worship you in spirit and in truth. और हम आत्मा और सच्चाई में हमने आपकी आराधना हम कर पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Even as we are going to hear the word of God, और जैसे अब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, open our ears and hearts.
हमारे कानों को, हमारे हृदय को आप खोल दे, so that your word will find room in our life. आपका वचन हमारे जीवन में जगह को पा सके। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In your precious name, we ask this prayer. आपके अनमोल नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। So let's read Ephesians 1 and verse 3. आइए हम इफिसियों 1:3 को पढ़े। It says here, और यहाँ ऐसा लिखा है, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The title of today's message is, और आज का संदेश का शीर्षक है, We are seated in the heavenly places. हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। That's what the Bible says. और ये बाइबल कहती है, Today, you and I are seated in the heavenly places with Christ Jesus, with every spiritual blessing. आज आप और मैं, हम लोग स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ हम बैठे हुए हैं, वो सब प्रकार के आशीषों के साथ। To some of us, this truth is mind-blowing. और हम में से बहुतों के लिए ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है। The people like us seated in the heavenly places with Christ and having all the spiritual blessings. हम जैसे लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के स्थानों में बैठे हुए हैं, वो भी पूरे आध्यात्मिक आशीषों के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Yes, this is the new position in Christ as a child of God that we have. और ये हमारे पास हमारा नया स्थान है मसीह में परमेश्वर के बच्चों के रूप में। When we got saved, जब हमने उद्धार पाया, when we got saved, जब हमने उद्धार पाया, Jesus has changed our position. यीशु ने हमारे स्थान को, स्थिति को बदल दिया। Jesus has promoted us. और यीशु ने हमें पदोन्नति दी। Hallelujah. हालेलुया। Yes, when we got saved, हाँ, जब हमने उद्धार को पाया, we were set free from every bondage of sin. हमने पाप के हर प्रकार के बंधन से हमने आजादी को पाया। Sickness and poverty, बीमारी, गरीबी, दरिद्रता से, depression, curse, डिप्रेशन, अवसाद या श्राप से, demonic oppressions, शैतान द्वारा हम सताए गए थे, and from hurts and wounds. चोट और घावों से। See, Jesus has delivered us from all this. और देखिए कि यीशु ने हमें इन सारे बंधनों से आजादी दी। See, all this thing is in the lower level. आप देखिए कि ये सब निचले स्थान में है। But Jesus has lifted us up from this lowly position and has made us sit in the heavenly places, the higher places. अब देखिए कि यीशु ने हमें ये निचली स्तर से उठाकर हमें ऊपरी स्तर में रखा है। This is what the Bible says. और ये बाइबल कहती है। Let's understand by reading some of more verses. आइए हम और कुछ वचनों को पढ़ के इसे समझे। Ephesians chapter 1, 17 to 20 verses we are going to read. और हम इफिसियों 1 का 17 से 20 तक हम पढ़ेंगे। I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। The last part of this verse says, so that you may know him better. और ये वचन का आखिरी में ऐसा लिखा है कि ताकि तुम मुझे अच्छे से पहचानो। It was the earnest desire of Paul that the believer should know Jesus better, more clearly. और ये पौलुस की तीव्र चाहत थी कि विश्वासी यीशु को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचाने। It's very important, my brother, sister, for us to know Jesus better.
और ये बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु को अच्छी तरीके से हम पहचाने। With every passing day, we must know Jesus better and better. और हर दिन जब गुजरता है हमें यीशु को और भी अच्छी तरीके से पहचानना है। That is for our blessing, for our victorious life. ये हमारी आशीष और जयवन जीवन के लिए है। Verse 18. और 18 I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। You see, Paul was praying, Lord, let the heart be enlightened. और यहाँ पे लिखा है कि होने दे कि उनका हृदय ज्योतिमय हो, So that they may understand the hope to which they have been called. कि वो जान ले कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, there is great hope in our callings, my brother, sister. और हमारे बुलाहट में बड़ी आशा है मेरे भाई और बहनों। And verse 19 says, और 19 में लिखा है, and his incomparably great power for us who believe. और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। That power is the same as the mighty strength. उसकी शक्ति के प्रभाव में उस कार्य के अनुसार। Verse 20, he exhorted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. और उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर। You see, we should know Jesus better. आप देखिए कि हमें यीशु को अच्छी तरीके से पहचानना है। We should know the hope of our calling. और हमें हमारी बुलाहट की आशा को जानना है। And we must understand the power that is available to us as a child of God. और परमेश्वर के संतान होने के नाते जो सामर्थ और शक्ति है हमें उसे पहचानना The है। power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ। The same power of the Holy Spirit that raised Jesus from the dead. और वही पवित्र आत्मा का सामर्थ जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। The same power is available to you and me as a child of God. और वही सामर्थ आपके और मेरे लिए उपलब्ध है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। Wow! ये बहुत अच्छी बात है। Hallelujah! हालेलुया। Such a blessing is there for you and me, my brother, sister. और इतनी बड़ी आशीष है आपके और मेरे लिए। And all these blessings are not in the carnal level or in the fleshly level. और ये सारी आशीषें निचले स्तर में सांसारिक और शरीर के स्तर में नहीं है। But it is in the heavenly places, पर ये तो स्वर्गीय स्थानों में है। which is our new position in Christ as a child of God. और जो मसीह में हमारा नया स्तर है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे संतान हैं। I hope you are getting my point here. मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे बिंदु को समझ रहे हैं। The following scripture will help us to understand more clearly as how and why we have a new position in Christ. और ये निम्नलिखित अध्याय हमें समझने में सहायता करेगी कि कैसे और क्यों हमने ये नए स्थान को मसीह में पाया है। Hallelujah. हालेलुया। Let's read Romans chapter 8, 1 to 3 verses. आइए हम रोमियो 8 का 1 से 3 तक पढ़े। There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Here in this verse 1, और ये पहले आयत में we see two realms. हम दो क्षेत्रों को हम देखते हैं। One is fleshly realm, और एक है शारीरिक क्षेत्र or you can say earthly realms. या फिर हम कह सकते हैं सांसारिक क्षेत्र। The second is spiritual realm, और दूसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र or you can call it supernatural realm. या फिर हम इसे कह सकते हैं अलौकिक क्षेत्र। Hallelujah. हालेलुया। Because verse 1 we read, क्योंकि पहला आयत में हमने पढ़ा who do not walk according to the flesh. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। This is the lower level. और ये है निचला स्तर। This is the
earthly level और ये है सांसारिक क्षेत्र where we were actually born. जहाँ पे हमने जन्म को लिया. We were there till the time of our salvation. हम वहाँ पर हमारे उद्धार के समय तक थे. Hallelujah. हालेलुया. But now it says, पर अब यहाँ ऐसा लिखा है, but according to the Spirit. वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. Because now Jesus lifted us up from earthly level to supernatural level. क्योंकि अब यीशु ने हमें सांसारिक क्षेत्र स्तर से उठाकर अलौकिक क्षेत्र में रखा है. Hallelujah. हालेलुया. Verse 2. और दूसरा आयत, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया. Here again, यहाँ फिर से Paul talks about two realms. पौलुस दो क्षेत्रों के बारे में बात करता है. The first one is the law of the Spirit of life, और पहला है आजीवन की आत्मा का व्यवस्था, which is supernatural realm. और जो है अलौकिक स्तर या क्षेत्र. And the second is और दूसरा है the law of death. मृत्यु की व्यवस्था, That is natural realm, earthly realm. और जो है प्राकृतिक या फिर सांसारिक क्षेत्र. The law of death works in the earthly realm. और जो मृत्यु का व्यवस्था है वो ये सांसारिक क्षेत्र में काम करता है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. But पर the law of Spirit of life जीवन की आत्मा का व्यवस्था works in the spiritual realm. वो तो आध्यात्मिक स्तर क्षेत्र में काम करता है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. So, but right now the Bible says अभी जो बाइबल कहती है, we have been seated in the heavenly places. हम स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हुए हैं. Glory to God. प्रभु की स्तुति हो. Now verse 3. और तीसरा आयत, For what the law could not do in that it was weak through the flesh, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh. उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में On account of sin, और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर he condemned sin in the flesh. शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी. You see here, Paul is talking about Jesus being the sacrifice made for all the humanity for their salvation. आप देखिए यहाँ पे पौलुस यीशु के बारे में बात कर रहा है जो पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान बना. This is how God has lifted us up from the earthly realm to the spiritual realm. आप देखिए कि ऐसे यीशु ने हमें सांसारिक क्षेत्र से, सांसारिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक स्तर में रखा है. God has lifted us up from the fleshly realm, carnal realm or earthly realm to spiritual realm or heavenly realms by the sacrifice that was made by Jesus Christ. आप देखिए कि परमेश्वर ने हमें सांसारिक शरीर के क्षेत्र से उठाकर हमें स्वर्गीय आध्यात्मिक क्षेत्र में रखा यीशु के बलिदान के द्वारा. 1 John chapter 2 verse 2 says, पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी. When Bible says, और जब बाइबल कहती है, as we read in Ephesians 1:3, जैसे हमने इफिसियों 1:3 में पढ़ा, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. Now, on what condition, on what account we have been blessed in the heavenly places? हम कैसे और क्यों हम उस आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्तर में हम बिठाए गए हैं? On account of Jesus' death as atoning sacrifice.
हम यीशु के मृत्यु जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो बलिदान बना, उसके कारण हम स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So now, because now we are saved children of God. क्योंकि अब हम परमेश्वर के उद्धार पाए हुए संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहती है everyone who has accepted Jesus as Lord and Savior, God has given him or her to be a child of God. और हर किसी ने यीशु को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। Everyone who believes that Jesus died for my sin and was buried and God raised him up from the dead, he becomes a righteous person. और हर कोई जो ये विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से मृत्यु से जी उठाया है, उन्हें धार्मिकता का अधिकार उन्हें मिला है। And when that person accepts Jesus as his Lord and Savior, और जब ये व्यक्ति यीशु को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, that person is saved. तो वो व्यक्ति उद्धार को पाता है। Hallelujah. हालेलुया। Because when you accept Jesus in your heart, क्योंकि जब आप यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, you deny your previous master. तो आप अपने जो आपके पहला जो स्वामी था, आप उसको इनकार करते हैं। Who was our previous master? हमारा पहला स्वामी कौन था? The devil. शैतान। Whatever you made your God. जिसको भी आपने अपना ईश्वर बनाया। But the day you accepted Jesus, invited Jesus in your heart as your Lord and Savior, पर जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में बुलाया और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, now you have a new master. तो अब आपका नया स्वामी है। Now God is your master. अब परमेश्वर आपका स्वामी है। Jesus is your master. अब यीशु आपका स्वामी है। And by accepting Jesus in our life, और जब हम यीशु को अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं, by believing Jesus had died for me, ये विश्वास करके कि यीशु मेरे लिए मारा गया, you know actually what you have done? आपको पता है आपने क्या किया है? You have crucified your old self on the cross with Jesus Christ. आपने अपने पिछले जीवन को यीशु के साथ क्रूस में आपने लटकाया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And now you have been made a new creation in Jesus Christ. अब आप यीशु में एक नए सृष्टि है। Because now you have turned from your wicked ways, from your sinful ways. क्योंकि अब आप अपने पुराने दुष्ट चाल चलन से, पाप पूर्वक जीवन से आप लौट आए हैं। Now you worship the living God. अब आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। Now you are a child of God. अब आप परमेश्वर के संतान हैं। Now your name has been written in the book of life. अब आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। Hallelujah. हालेलुया। And now you are seated in the heavenly places अब आप स्वर्गीय स्तर में आप बैठे हुए हैं। with every spiritual blessing. हर प्रकार के आध्यात्मिक आशीषों के साथ। Many Christians, they dream of going to heaven और बहुत सारे ईसाई स्वर्ग जाने का स्वप्न देखते हैं after death. मृत्यु के बाद। After death. मृत्यु के बाद। But you know what Bible says? पर आपको पता है बाइबल क्या कहती है? Right now we are in the heavenly places. अभी हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Right now we are sitting with Christ Jesus in the heavenly places. अभी हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हुए हैं। That's the new position the Lord has given to us. ये नया स्तर है जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। With all the authority of Jesus Christ. और यीशु के सारे अधिकारों के साथ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now choice is ours. अब चुनाव हमारा है। Where we will live. हम कहाँ जीना चाहते हैं? In the natural realm or in the supernatural realm. क्या हम प्राकृतिक क्षेत्र में स्तर में जीना चाहते हैं या फिर हम अलौकिक स्तर में जीना Do चाहते you want to हैं? live in the flesh or you want to live in the spirit? क्या आप शरीर में जीना चाहते हैं या फिर आप आत्मा में जीना चाहते You want to हैं? live according to your flesh or you want to live according to the spirit? क्या आप अपने शरीर के प्रभाव में जीना चाहते हैं या आप आत्मा से हम जीना चाहते हैं? Now choice is ours. अब चुनाव हमारा है। Many children of God have made choice to live by the Spirit and they are living to the fullest in Jesus Christ.
और वो यीशु में अपने पूरे कौशलता में वो जी रहे हैं। As we read in John 10:10, जैसे हम यूहन्ना 10:10 में पढ़ते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, I have come so that they may have life and that they may have it more abundantly. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। So people who have made choice to live according to the Spirit, they are living an abundant life. और जिन लोगों ने चुनाव किया कि वो आत्मा में वो जीना चाहते हैं, वो अभी बहुतायत में जी रहे हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। But people who have made choice to live according to the flesh, और जिन लोगों ने चुनाव किया कि वो शरीर में जीना चाहते हैं, should I tell you the truth? क्या मैं आपको सच्चाई बताऊं? They are dying. वो मर रहे हैं, They are dying. वो मर रहे हैं। They are dying first spiritually, पहले वो आध्यात्मिक रूप से मर रहे and they will हैं die physically. और फिर वो शरीर में मरेंगे। Let's read Romans 8:5 and 6. आइए हम रोमियो 8 का 5 और 6 को पढ़े। For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Verse 6. और 6, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So it is ours, चुनाव हमारा है, whether we want to live according to the Spirit क्या हम आत्मा के अनुसार जीना चाहते हैं and enjoy abundant life that और- Jesus offered to us, और बहुतायत का जीवन का आनंद उठाएं जो यीशु ने हमें दिया है, enjoying life and peace, और शांति और जीवन का आनंद उठाना, or live according to the flesh and die. या फिर हम शरीर के अनुसार जी कर मरे। People are there, they're every day experiencing death. लोग आज भी हैं जो हर दिन मृत्यु का वो अनुभव करते हैं, No doubt they're Christian. और इसमें कोई शक नहीं कि वो मसीही हैं। But you know, you can live, you can enjoy abundant life in Jesus Christ. आपको पता है आप यीशु में बहुतायत जीवन का आनंद उठा सकते You हैं, can enjoy life and peace in this present life. और आप ये जीवन में, इस जीवन में आप शांति और जीवन का आनंद उठा सकते हैं, Whether you are poor or rich, चाहे आप गरीब हो या आप धनी हो, whosoever you may be, आप कोई भी क्यों ना हो, in any situation you may be in, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, you can enjoy life and peace. आप जीवन और शांति का आनंद उठा सकते हैं। The following verses say, और निम्नलिखित आयतें ये बताती है, we have been raised from earthly realm to the spiritual realm. हम संसारिक क्षेत्र से उठाकर हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में हम उठाए गए हैं, To the heavenly realms. स्वर्गीय स्तर में। Bible says we are hidden in Christ. बाइबल कहती है कि हम मसीह में छिपे हुए हैं। What does this mean? इसका क्या मतलब है? The truth is, सच्चाई ये है, we have been raised up हम उठाए गए हैं from evil, बुराई से, sickness, बीमारी से, poverty, गरीबी, hatred, नफरत, unforgiveness. क्षमा न करना। All this evil do not have access to our new position in Christ Jesus. और ये सारी बुराई का हमारा जो नया स्तर है यीशु मसीह में, उसमें इसका कोई भी प्रवेश नहीं है। All these things operate only in the earthly realm. और ये सारी चीजें केवल संसारिक क्षेत्र में ही काम करता है। Your sickness, your infirmity, your poverty, your hatred, unforgiveness, all sorts of evil, even demonic forces, they can operate only here on this earthly level. आपका बीमारी, दरिद्रता, गरीबी, कमजोरी, नफरत, क्षमा न करना और हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के वो सताए जाना, ये केवल ये संसारिक क्षेत्र में ही ये काम कर सकता है। It will have access only you when you live on this earthly level. ये तभी प्रवेश कर सकता है जब आप इस संसारिक क्षेत्र स्तर में जीते हैं। But when you raised up,
बट जब आप उठाए जाते हैं, when you are sitting in the heavenly realms, जब आप स्वर्गीय स्थानों में जब आप बैठते which is हैं, your new position in Christ Jesus, जो यीशु मसीह में आपका नया स्थान है, so this thing cannot reach you. तो ये सारी चीजें आप तक नहीं पहुंच सकती। Hallelujah. हालेलुया। What does it mean? इसका क्या मतलब है? You live a healthy life. आप एक स्वस्थ जीवन को जीते हैं। So today we are praying for sick people. और आज हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। You know, today we pray for people to get well from the sickness and diseases. और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बीमार है, दुर्बलता में है, वो अपनी चंगाई को पाए। But if you live in the heavenly places, पर अगर आप स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं, रहते you will हैं, not even fall sick. आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Prevention is better than cure. इलाज से बेहतर रोकथाम है। Why should we get sick in the first place? और पहली बात कि हम क्यों बीमार पड़े? Hallelujah. हालेलुया। If we understand our new position in Christ Jesus, अगर हम यीशु मसीह में हमारे नए स्थान को अगर हम समझते हैं, if you know that I am hidden in Christ, अगर मैं ये जानता हूँ कि मैं मसीह में छिपा हुआ हूँ, so this sickness, infirmity, poverty, hatred, this will not be able to affect me. तो ये हर प्रकार के बीमारी, दुर्बलता, गरीबी, नफरत, ये सारी चीज मुझ तक नहीं आ सकती। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Because हो। when Bible says you have been blessed in the heavenly places with all the spiritual blessings, that means you are now above all this evil. क्योंकि जब बाइबल कहती है कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीषों के साथ बैठे हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम ये सारी चीजों से ऊपर हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And it says with every spiritual blessing. और ये कहा गया है कि हर प्रकार के आध्यात्मिक आशीषों के साथ, Oh, glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। You have all the blessings. आपके पास हर प्रकार की सारी आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। You name any blessing, that's for you. और आप किसी भी आशीष का नाम ले, वो आपके लिए है। Any blessing, brother, sister, कोई भी आशीष मेरे भाई और बहनों, that's yours. वो आपका है। You are blessed with the blessings of Abraham. आप इब्राहिम की आशीष से आशीषित हुए हैं। Jesus became cursed for us, यीशु हमारे लिए श्रापित बना, so that today we might be blessed with the blessings of Abraham. कि आज हम इब्राहिम की आशीष से आशीष को पाए। Oh, hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। So, when you get sick, तो जब आप बीमार पड़ते हैं, immediate the reaction you should have is, this is not mine. तो आपको वहां पे ये प्रतिक्रिया तुरंत करना है कि ये मेरे लिए नहीं है। I can't accept it. मैं इसे नहीं ग्रहण कर सकता, It cannot operate in my life, in my realm. और ये मेरे स्तर में, मेरे जीवन में प्रवेश कार्य नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Yes, we live in this world, we live in this flesh, हाँ, हम इन संसार में जीते हैं, हम शरीर में जीते हैं, but spiritually we are also placed in the heavenly places. पर आध्यात्मिक रूप से हम स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए हैं। Let's read Colossians chapter 3 verse 1 and 4. आइए हम कोलोसियों 3 का 1 से 3 तक पढ़े। If then you were raised with Christ, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, seek those things which are above, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, where Christ is, जहां मसीह वर्तमान है, sitting at the right hand of God. और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। Verse 2. दूसरा, Set your mind on things above, not on things on the earth. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, For you died and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Now, since we have been blessed in the heavenly places with all the spiritual blessings, क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हुए हैं हर प्रकार के आध्यात्मिक आशीषों के साथ, now we must set our mind on the things above. तो इसीलिए हमें ऊपरी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। How will you know? आपको कैसे पता How will you चलेगा? know what are the things of above? आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपरी स्वर्गीय के वस्तुएं क्या है? That's why Paul said, I pray for you.
इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता So your हूँ heart will be enlightened. कि तुम्हारा हृदय ज्योतिमय हो, So you know the hope of your calling. कि तुम अपने बुलाहट की आशा को जानो। Hallelujah. हालेलुया। Oh, brothers, sisters, so much blessing is there lying for us. मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे आशीषों आपके और मेरे लिए है, But somehow we don't take time to read the word of God, understand the word of God. पर हम समय को नहीं निकालते कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसको मनन करें। God wants to bless you just like that, or in fact, He has already blessed you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, या फिर हम इसे कहें कि परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया It's है, already yours. ये आपका है। Because we do not know the truth. क्योंकि आप सच्चाई को नहीं जानते। We think I have to strive, I have to fight, I have to run around. और हमें लगता है कि नहीं, मुझे संघर्ष करना है, मुझे लड़ना है, मुझे इधर उधर दौड़ना भागना है To get all these blessings. इन सारे आशीषों को पाने के लिए। I'm not saying that you shouldn't work. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं करना है, I'm not saying you shouldn't do any business. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई व्यवसाय नहीं करना है, But what I want to tell you is you have been blessed in the heavenly places. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग के स्थानों में आपने आशीष को पाया है, By positioning yourself in the new place. अपने आप को वो नए स्थान में रखकर। My brother, sister, you will be blessed with all these things. मेरे भाई और बहनों, आप ये सारे आशीषों से आप आशीषित होंगे। With your little effort, you will have everything. आपकी थोड़ी सी मेहनत से आप हर सब कुछ को आप पाएंगे। You will make God number one in your life. आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम पहला स्थान देंगे। You will love God wholeheartedly. आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करेंगे। You will worship God wholeheartedly. आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करेंगे। You love your church wholeheartedly. आप अपने पूरे हृदय से अपनी कलीसिया से प्रेम करेंगे, Because you know you have been blessed already. क्योंकि आपको पता है कि आपने आशीष को पा चुके You हैं। need not to be slave of anything in this world. आपको इस संसार के किसी भी चीज का गुलाम बनना नहीं है। You are master आप तो स्वामी हैं with Jesus Christ, यीशु मसीह के साथ। ruling over this earth. आप इस संसार में राज कर रहे हैं, That is what we have been called for. और इसलिए हम बुलाए गए हैं। Now what we should do? अब हमें क्या करना है? I will tell you three things that we as a child of God should do, और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें ये तीन चीज so करना that है you will enjoy life in peace कि हम जीवन और शांति का आनंद उठाए while living in this body. जब हम इस शरीर में हम जीवित हैं। Hallelujah. हालेलुया। Number one, पहला, believe. विश्वास। Believe what the Lord Jesus Christ has finished for you. आप विश्वास करें जो यीशु ने आपके लिए समाप्त किया है। 2 Corinthians 4:13 says, और दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। Believe. विश्वास करें, Very important, believe. और बहुत जरूरी है विश्वास करना। Jesus said, यीशु ने कहा, the work of God is to believe Him. और परमेश्वर का काम है कि हम उस पे विश्वास करें। You know what can forfeit you of all the blessings? आपको पता है वो कौन सी चीज है जो आपको वो सारे आशीष से रोक सकती है? Unbelief. अविश्वास। Unbelief. अविश्वास। And how will you increase your faith? और आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? How can you believe God more strongly? आप कैसे और भी दृढ़ता से परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? When you know the truth of the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन के सच्चाई को जानते हैं। You are not called to live a religious life. आप धर्म के जीवन को जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। You are not called to do a religious activities. आप धर्म कर्म के कामों को करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। We have been called to live
an intimate life with Jesus Christ. हम तो परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध में जीने के लिए बुलाए गए हैं। Out of that intimacy comes every blessing, my brother, sister. और उस घनिष्ठता से हर प्रकार की आशीष आती है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Second thing, दूसरा, speak. बोले। Speak out what you believe. आप वो बोले जिस पर आप विश्वास करते हैं। We read in 2 Corinthians chapter 4 verse 13. हमने दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में पढ़ा, It says, और यहाँ लिखा है, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। You have to speak out what you believe. आपको वो बोलना है जिस पर आप विश्वास करते हैं। Bible says, बाइबल कहती है, mouth speaks out of the abundance of heart. मुंह वही बोलता है जो हमारे हृदय में बहुतायत से है। So what you believe? तो आप क्या विश्वास करते हैं? You believe that you are living above this earth in the heavenly places. आप ये विश्वास करते हैं कि आप स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं। You believe that you live above sickness, infirmities and poverty. आप विश्वास करते हैं कि आप बीमारी, दुर्बलता, गरीबी से ऊपर रहते हैं। You believe that you live above hatred, disharmony. आप विश्वास करते हैं कि आप नफरत, अमेलता के ऊपर रहते हैं। You believe that you live above all the evil of this earth. आप विश्वास करते हैं कि आप ये संसार के सारे बुराइयों के ऊपर रहते हैं। You have to speak out. आपको बोलना है। Hallelujah. हालेलुया। You have to speak out saying, I don't live in the earthly realms. आपको बोलना है विश्वास के साथ कि मैं इस सांसारिक स्तर में नहीं जीता हूँ। I am living in the spiritual realm. मैं तो आध्यात्मिक स्तर में जीता हूँ। I am living in the natural body. हाँ, मैं प्राकृतिक शरीर में जीवित हूँ, रहता But हूँ। I am a supernatural man. पर मैं तो अलौकिक व्यक्ति हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So you have to speak out what you believe. तो आपको वो बोलना है जिस पर आप विश्वास करते हैं। What you believe, you have to speak. आप जो विश्वास करते हैं उसे आपको बोलना है। In Proverbs 18:21 says, नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, death and life are in the power of the tongue. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। Oh, brother, sister, when you speak life, you will release life. जब आप जीवन को बोलते हैं तो आप जीवन को वहां पे स्वतंत्र करते हैं। Many people are quick to react negatively. और बहुत सारे लोग जल्द से नकारात्मक प्रतिक्रिया को करते हैं। People speak negatively on themselves. और लोग नकारात्मक चीजों को अपने लिए बोलते हैं। They speak negatively for others, और वो दूसरों के लिए भी नकारात्मक बातों को बोलते हैं, not realizing that tongue has power to release life and death. वो ये नहीं समझते हैं कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। Don't speak death to yourself or to others. आप अपने लिए या फिर दूसरों के लिए मृत्यु को ना बोले। Don't speak evil on yourself or to others. आप अपने लिए या दूसरों के लिए बुराई को ना बोले, Speak life. जीवन को बोले। Release the word of God to the people, to yourself. अपने लिए दूसरों के लिए परमेश्वर के वचन को स्वतंत्र करे। Speak the word of God into your situation. आप अपने परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को बोले। So speak what you believe. और इसीलिए उसे बोले जिस पर आप विश्वास करते हैं। Even if you are tempted to speak negatively, अगर आप परीक्षित होते हैं कि आप नकारात्मक बातों को बोले, control yourself. अपने आप को संयम में रखें, Restrain yourself. अपने आप को रोक ले, Don't speak. ना बोले। The moment you release a word, क्योंकि जिस क्षण आप शब्द को स्वतंत्र करते you हैं, release power, आप वहां पे सामर्थ को बोलते हैं, whether positively or negatively. सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में। Third, तीसरा, receive it by faith. विश्वास से ग्रहण करे, Receive it by faith. और विश्वास के साथ उसे ग्रहण करे। Jesus said in Mark 11:24, यीशु ने मरकुस 11 का 24 में कहा, therefore I tell you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ whatever you ask for in prayer, कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, believe that you have received it,
विश्वास करो कि तुमने उससे पा लिया है and it will be yours. और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में in God's economy, और परमेश्वर की इकोनॉमी में it works slightly differently. और ये भिन्न तरीके से काम करता है। In the worldly economy, और सांसारिक इकोनॉमी में you receive it and you believe. आप पहले पाते हैं फिर विश्वास करते But in हैं। God's economy, पर परमेश्वर की इकोनॉमी में you believe, then you receive. आप विश्वास करते हैं फिर आप उसे पाते हैं। Unless you believe, you receive, you will not receive it. जब तक आप विश्वास ना करें कि आपको मिल नहीं गया है तब तक आपको नहीं मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। We have a great example in the Bible. और हमारे पास बाइबल में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। Let's read Romans chapter 4 verse 17 to 21. आइए हम रोमियो 4 का 17 से 21 तक पढ़े। As it is written, I have made you a father of many nations. He is a father in the sight of God in whom he believed. जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। Here we read, Abraham was promised to have a son. और यहाँ हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम को प्रतिज्ञा मिला कि उसका बेटा होगा। And through his son he will be father of many nations. और उसके बेटे के द्वारा वो बहुत सारे राष्ट्रों का वो पिता बनेगा। Hallelujah. हालेलुया। The God who gives life to the dead and calls into being things that were not. और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। That's what Abraham believed. और ये इब्राहिम ने विश्वास किया। That is why Abraham called our father in faith. और इसीलिए इब्राहिम को विश्वास का पिता माना जाता है। Verse 18 says, और 18 में लिखा है, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। Just as it had been said to him, so shall your offspring be. कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। You see, here it says, और यहाँ ऐसा लिखा है, Abraham believed God. He held on to the hope against all hope. और यह ऐसा है कि अब्राहम ने प्रतिज्ञा को उसने पकड़ा रहा और हर एक निराशा के विरोध भी उसने आशा रखा। Why against all hope? क्यों हर एक निराशा के विरोध में? Because he became 100 years old man and his wife became 90 years old woman. क्योंकि वो 100 वर्ष का हो गया और उसकी पत्नी 90 वर्ष की हो गई। Humanly speaking, impossible for them to have a child at that age. मानवीय रूप से ये असंभव था कि इस उम्र में वो बच्चे को पैदा करे। Abraham and Sarah had passed the age of bearing child. और इब्राहिम और सारा ने अपने उम्र को वो पार कर चुके थे जिस उम्र में उनका कोई संतान हो। But he did not look at the earthly realm things. पर उसने वो संसारिक स्तर के चीजों को नहीं देखा। He was not living in the earthly realm. वो संसारिक स्तर में नहीं जी रहा था। He was not living in the carnal realm. वो तो संसारिक क्षेत्र में नहीं जी रहा था। He was not living in the fleshly realm. और वो तो शरीर के क्षेत्र में नहीं जी रहा था। He was living in the spiritual realm, supernatural realm. वो तो आध्यात्मिक अलौकिक स्तर में जी रहा था। So that he could believe against all hope. कि वो हर एक निराशा के उस पे विश्वास कर सके। When you and I live in the spiritual realm, जब आप और हम जब आध्यात्मिक स्तर में जीते हैं, when you and I live in the heavenly places, जब हम स्वर्गीय स्तरों में जीते हैं, it's very easy for you and me to believe the word of God. तो ये हमारे लिए बहुत आसान होता है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। But if you live in the earthly realm, पर अगर हम संसारिक स्तर में जीते हैं, always influenced by this earth, by all that happening around you, और हमेशा हम संसार से और जो कुछ भी हमारे आसपास होता है उसके प्रभाव में हम जीते हैं,
it will be very hard for you and me to believe the word of God and confess the word of God. तो ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसे अंगीकार करें। Humanly speaking, मानवीय रूप से बात करें तो for Abraham, Sarah, the situation was adverse. और अब्राहम और सारा के लिए उनका परिस्थिति अच्छा नहीं था, But they held on to the word of God. पर उन्होंने परमेश्वर के वचन को वो पकड़े रहे They hold on to the hope against all hope. और उन्होंने निराशा के विपरीत उन्हें आशा को उन्होंने पकड़ा रहा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And finally they got what was promised to them. और अंत में उन्हें वो मिला जिसका प्रतिज्ञा हुआ था। Verse 19 says, और 19 में लिखा है, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, Abraham, Sarah did not weaken their faith इब्राहिम और सारा ने अपने विश्वास को निर्बल नहीं किया, simply because they were living in the spiritual realm. क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर में जी रहे थे। Simply because they're living in the heavenly realms. क्यों? साधारण रूप से क्योंकि वो स्वर्गीय स्तर में जी रहे थे। When you and I live in the spiritual realm like Abraham, जब हम इब्राहिम की तरह आध्यात्मिक स्तर में जीते हैं, whatever may happen around us, हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना हो, even if you go through the valley of shadow of death, अगर आप वो मृत्यु की तराई से भी क्यों ना आप गुजरे, you will hold on to the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे। The situation around you will not weaken your faith. और आपके आसपास की परिस्थिति आपके विश्वास को निर्बल नहीं करेगी। Hallelujah. हालेलुया। And constant feeding on the word of God, और लगातार परमेश्वर के वचन को सुनना, constantly being filled with the Holy Spirit, और लगातार पवित्र आत्मा से भरा जाना, constantly speaking in spirit, और लगातार अन्य आत्मा में बोलना, help us to stay there in the heavenly places. ये हमें सहायता करती है कि हम स्वर्ग के स्तर में हम जिए। And brother, sister, you will get what has He promised to you. और मेरे भाई और बहनों, आपको वो मिलेगा जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Verse 20 says, और 20 में लिखा है, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। Abraham, Sarah didn't allow anything or there any situation to make them unbelieve the promise of God. अब्राहिम और सारा ने किसी भी परिस्थिति को, कोई भी चीज को अनुमति नहीं दिया कि वो उनके विश्वास को निर्बल कर सके। They did not waver through unbelief. और वो अविश्वास से वो नहीं हिले, They did not waver in their faith. और वो अपने विश्वास में नहीं हिले। They held on to the promise of God. उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को वो थामे रहा। So receive by faith और इसीलिए विश्वास से ग्रहण करे। whatever has been promised to you. और जो जिस किसी भी चीज का प्रतिज्ञा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। You read in the Bible, अब बाइबल में पढ़ते हैं, and we have been bringing the word of God week after week, और हर हफ्ते हम परमेश्वर के वचन को ला रहे हैं, showing you the treasures from the word of God, और हम परमेश्वर के वचन से खजाने को दिखा रहे हैं, so that you will understand what you have been blessed with. कि आप समझे कि आप किस चीजों से आशीषित हुए हैं। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, you have been blessed in the heavenly places with every spiritual blessings. आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं वो सारे आशीषों के साथ। Stay there. आप वहीं बैठे रहे। Hallelujah. हालेलुया। That's our new position in Christ Jesus as a child of God.
और वो यीशु मसीह में हमारा नया स्थान है परमेश्वर के संतान के रूप में। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Believe, विश्वास करें, speak, बोले receive. और ग्रहण करें। Amen. आमेन। We'll pray. आइए प्रार्थना करें। Let's close our eyes and bow our heads. अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में we thank you हम धन्यवाद देते हैं for being the atoning sacrifice for us. हमारे प्रायश्चित का बलिदान बनने के लिए। Because of your sacrifice, आपके बलिदान के द्वारा today we have got a new position in you in heavenly places. हमने आपके साथ स्वर्ग के स्थान में नया स्थान को पाया है। And you have blessed us with all the spiritual blessings. और आपने हमें हर प्रकार के आध्यात्मिक आशीष से आशीषित की है। Lord, you have lifted us up from the earthly realm to the supernatural realm. प्रभु, आपने हमें शारीरिक स्तर से उठाकर अलौकिक स्तर में रखा है। Thank you, Lord Jesus, today living in this body, living on this earth, और आज हम प्रभु शरीर में और संसार में जीते हुए we can yet experience supernatural blessings. हम अलौकिक आशीष का हम अनुभव कर सकते हैं। We can experience supernatural power of God in our life. और हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ का अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। You want us to enjoy life and peace, everyday life. आप चाहते हैं कि हम हर दिन जीवन और शांति का अपने जीवन में आनंद उठाएं। Many of my brothers sisters are affected by sickness, diseases, oh Lord. और मेरे बहुत सारे भाई बहन आज बीमारी दुर्बलता से वो संक्रमित हुए हैं But they're going through lacks. और वो कमी घटी से गुजर रहे हैं। Even many of us are going through even poverty. और हम में से बहुत हम वो गरीबी से हम गुजर रहे हैं। There is problem in our families. हमारे परिवार में समस्या है। Problem in our relationship. हमारे संबंध में समस्या है। Lord, there is crisis in our job and business. और hamaरे नौकरी में व्यवसाय में वहाँ पे Lord, संकट we see है। problem in the national level. और हम हमारे राष्ट्र में भी हम समस्या को देखते Lord, we हैं। see Father problem all around the world. और हम संसार में समस्या को देखते हैं। But Lord Jesus, you have raised up church in the heavenly places. पर यीशु आपने कलीसिया को स्वर्ग के स्थान में You रखा have है। placed all your saved children in the heavenly places. आपने अपने सारे उद्धार पाए हुए बच्चों को स्वर्ग के स्तर में रखा है। With the authority in the name of Jesus. यीशु के नाम में वो अधिकार के साथ So the Lord, we will speak your blessing over our nation. कि प्रभु हम आपके नाम में हमारे देश में हम आशीष को We बोले। will not only live for ourselves. हम केवल अपने लिए नहीं जिएंगे। We will not only pray for ourselves. हम केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं We will करेंगे। pray for perishing souls. हम तो वो नाश हो रहे आत्माओं के लिए प्रार्थना We will करेंगे। pray for the national problems, international problems. और हम हमारे देश के राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। Because you are the creator of the whole universe. क्योंकि आप तो पूरे ये ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है। You want your church to pray. आप चाहते हैं कि कलीसिया प्रार्थना करे। You want us to live in the supernatural realm. आप चाहते हैं कि हम अलौकिक हम स्तर में जिए। And you want us to enjoy life and peace in day-to-day life. और आप चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन जीवन और शांति का आनंद And also you want उठाएं। us to declare your righteousness, your kingdom over the face of the earth. और आप चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी में आपका राज्य का हम घोषणा करें। Oh Lord, have mercy upon us. प्रभु हम पर अनुग्रह कृपा करें। Have mercy upon all my brothers sisters. हमारे सारे भाई बहनों के ऊपर आप अनुग्रह करें। Lord, help us to know our new position in Christ Jesus as a child of God. हमें सहायता करें कि हम यीशु मसीह में हमारे नए स्तर को पहचाने परमेश्वर के संतान के रूप में। We need not to live on the earthly level. हमें इस संसारिक स्तर में जीने की आवश्यकता नहीं है। Help us to, Lord, set our mind on the things above, हमें सहायता करें कि हम ऊपरी बातों पे हम अपने ध्यान को लगाएं। not the things of below. ये निचले स्तरों में नहीं, In the earthly realm, संसारिक स्तर में all that happens in the world और जो कुछ भी ये संसार में होता है that will affect us, O Lord.
इसका प्रभाव हम पर पड़ता है। But when we live in the supernatural realm in the heavenly places, पर जब हम उस अलौकिक क्षेत्र में, उस आध्यात्मिक स्तर में जब हम जीते हैं, Lord, we will be, Father God, untouched from all this evil. तो हम ये सारे बुराई के हम प्रभाव में नहीं आएंगे। And Lord, we will, Father, be a blessing for our people, Lord, for our nation, and for the entire world. और हम हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे पूरे इस ब्रह्मांड के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। Thank you, Lord, for the truth of your word. धन्यवाद आपके वचन की सच्चाई के लिए। Thank you for everything you have done for us. धन्यवाद वो हर चीज के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। Bless us all, O Lord. हम सभी को आशीष दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you, my brother, sister. परमेश्वर आपको आशीष दे I मेरे भाई और hope बहनों। you have believed the word of God today. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन पर आपने विश्वास किया है। Till we meet again, और जब तक हम फिर से ना मिले, let's grow in the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। Shall we share the grace together? आइए हम अनुग्रह के साथ में बोले। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all now, forever and ever. And